Hello guys, so today we'll be discussing the questions of prelims 2025 from geography. इस साल geography के questions relatively थोड़े से ज़्यादा रहे. So overall if we see the around 19 to 20 questions were from geography directly. तो generally ऐसा होता नहीं है. Geography के mapping मिला के around what we have seen is 6 to 7 questions are being asked and lot of questions are being asked from environment. But this time around, they have asked more questions from geography. If you ask me that what's the difficulty level of these questions, so I would say they were average. They were not very difficult. They were not very easy either. Mapping के कुछ questions straightforward थे, तो वो relatively थोड़े आसान थे. And some of the questions were little bit tricky. Seemingly, जैसे continental drift theory का अगर आप सवाल देखो, या फिर even the question of isotherm which they have asked. What I have observed is on the face of it that question looks very easy कि यार ये तो book के अंदर लिखा हुआ है and I'll be able to solve it and all. But then if you actually read it carefully, you would realize that there is some trick in it which has forced students, because of which students have made it wrong. तो कई बच्चों ने उसके अंदर गलती करी जरूर होगी. That's what I feel. You just check, analyze whether you have made mistake in that or not. तो डिस्कस करते हैं इसको एक बार. जो भी सवाल डिस्कस करूंगा उसका मैं एक पूरा एनालिसिस भी दूंगा कि क्यों ये सवाल का आंसर जो है वो मैं ये कह रहा हूं. तो एवरीथिंग विल हैव अ सोर्स. एवरी आंसर व्हिच आई विल बी गिविंग, फॉर दैट आई विल बी गिविंग यू सम explanation as well, so that you should be assured that whatever answers we are discussing with you, they are actually up to the mark. Let's start with this. The first question is, consider the following statement. The sixth question was from geography. अच्छा, बाय द वे मैं ग्रुप ये डी वाला ले रहा हूं. अपना जो सेट है वो डी चल रहा है हमारा. तो इसमें 6 क्वेश्चन था. कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील. हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स? ठीक है. अब देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम जोन्स जो है वो फ्रांस के. The reason being, many students must have got surprised with this, क्योंकि सबको ये लगा होगा कि रशिया एंड यूएस इनके टाइम जोन सबसे ज्यादा है. बिकॉज व्हाट वी यूज्ड टू डिस्कस इन द क्लासेस कि भाई जिस भी कंट्री का लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है, सो दैट कंट्री टेंड टू हैव मल्टीपल टाइम जोन्स. सो द रशिया, कैनेडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, these countries have a very huge latitudinal expanse. And because of that, it's very obvious that one may feel that these countries have more than one time zone, which is absolutely correct. But there is one more thing कि पूरे दुनिया में 23 ऐसी कंट्री है जिनके टाइम जोन्स जो है वो 2 से ज्यादा है. And few of them are also the one in which the time zones are more than 4. अब ये जो क्वेश्चन है इसका हमारे नोट्स में जैसे कि वैसा मेंशन किया हुआ है that these are the countries, नाम के साथ लिखा हुआ है. We have in our study as we have discussed this that these are the countries that France has the maximum time zones, that is 13. Then Russia and US are on the second rank. Then United Kingdom, which is such a small country, the United Kingdom also has 9 time zone. कैसे हुआ ये? तो हुआ क्या था कि इन कंट्रीज ने जिन जिन देशों पे राज किया, कई देशों को तो छोड़ दिया, but there are certain island countries which they have never left. For that matter, the demography which has got developed over there, that demography was very similar to the ethnicity of those countries. For example, France की ethnicity या फिर UK की ethnicity. And because of that, those islands over there, they never wanted to be aloof from the mainland region, and that's why those countries stayed back over there. तो आज भी दुनिया भर में इनके कई सारे आइलैंड्स हैं जहां से एक टाइम जोन पास होता है. दिस इज द रीजन व्हाई फ्रांस का खुद का एक टाइम जोन होने के बावजूद भी उसका बाकी आइलैंड टेरिटरीज जो है वहां पर भी और टाइम जोन्स है. सो द टोटल टाइम जोन्स ऑफ फ्रांस इज द मैक्सिमम. सेकंड इज यूएस, रशिया, एंड देन आफ्टर दैट ऑन थर्ड रैंक देयर इज यूनाइटेड किंगडम. तो इन कंट्रीज का तो है ही है. तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं? यूनाइटेड किंगडम इज बीइंग गिवन. तो यूके के 9 टाइम जोन है टोटल. सो इफ यू टॉक अबाउट द डेनमार्क खुद तो एक कंट्री है, विच इज स्मॉल कंट्री इन द northern part of Europe, but along with that Denmark also have autonomy over the Greenland, and Greenland का भी एक अलग से time zone है. Along with that Denmark also controls some of the islands. This is the reason why Denmark has 6 time zones.
न्यूजीलैंड, no, New Zealand does not have more than 4 time zones. New Zealand has around 2 time zones and because of that this can be removed. ऑस्ट्रेलिया आता है अभी इसमें. अब ऑस्ट्रेलिया का अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया डज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स, क्योंकि इसका कोकोस करके एक आइलैंड है, क्रिसमस आइलैंड भी है, एंड दीज आइलैंड्स पर भी जो है इसकी सोवर्निटी है ऑस्ट्रेलिया के, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैज मोर देन 4 टाइम जोन्स. टॉकिंग अबाउट ब्राजील ओवर हियर, ब्राजील के एग्जैक्टली 4 है. अब देखो यहां पे ट्रिक ये थी कि देयर इज अ चांस दैट स्टूडेंट मे नॉट पे दैट मच अटेंशन टुवर्ड्स दिस फैक्ट दैट दे हैव आस्क्ड यू मोर देन 4 टाइम जोन्स एंड नॉट 4 और मोर टाइम जोन्स. इसी वजह से गलती होने के चांसेस ज्यादा है. तो मोर देन 4 मतलब यहां पे 4 भी काउंट नहीं होगा, राइट? सो द आंसर इज ओनली 3. सो दैट शुड बी द आंसर. सी इज द आंसर ओवर हियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो चलो फिर 7वां क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Another in Siberia and Nome in Alaska are few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. तो ये पहला स्टेटमेंट है. Is it correct? देखो हमने इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में ये पढ़ा हुआ है दैट अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के, अगर ये देखो ये अलास्का यहां पर है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो अलास्का के वेस्ट में है और उस इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में साइबेरिया आता है. So if you go east of international date line, so you gain a day. मतलब आप इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर पूर्व में जा रहे हो, ईस्ट में जा रहे हो, तो वहां पे आपको एक दिन गेन होता है. गेन होना मतलब क्या? एक दिन आप पीछे जाते हो, राइट? तो पीछे जाके देखते कोई भी एक डे ले लो यहाँ पे. इफ इट इज मंडे इन अलास्का, तो अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में जाओगे तो यू लूज ए डे, मतलब आप एक दिन आगे चले जाओगे. तो अगर मंडे होगा अलास्का में, सो देयर विल बी अ ट्यूसडे इन साइबेरिया, करेक्ट? तो इस कंटेक्स्ट में देखते हैं ये सही है कि नहीं. सो व्हेन इट इज मंडे इन अनादिर, अनादिर कहां पर था? यहां पे साइबेरिया में. इट इज ट्यूसडे इन नोम, नोम कहां पर था? अलास्का में, करेक्ट? सो नोम इन अलास्का. तो ट्यूसडे अगर यहां पर अगर नोम में अगर ट्यूसडे होगा तो फिर से आपको एक दिन आगे जाना पड़ेगा. तो नोम में अगर ट्यूसडे तो यहां पे क्या होना चाहिए? वेंसडे, बट वो मंडे बोल रहा है, नहीं? तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट ओवर हियर इज wrong. Answer is only 1. 9th देखो, consider the following pairs. Consider the following pairs: Botswana, diamond, Chile, lithium, Indonesia, nickel. How many of the above rows in the given information is correctly matched? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. हमें सबको पता है कि अगर आप अफ्रीका के सदर साउथ में जाते हो, कटंगा प्लेटू के नीचे, तो वहां पे डायमंड बियरिंग माइंस आर मेनी. South Africa, Botswana, these countries are Namibia and all these countries are known for their diamond deposits. तो ये सही है. Botswana सही लिखा हुआ है. Chile is known for lithium deposits, क्योंकि आपको पता है चिली कहां पर? साउथ अमेरिका का जो वो लिथियम ट्रायंगल वाला है ना, बोलीविया, चिली एंड ऑल. सो ये उसमें आता है. तो लिथियम चिली में है क्या? हाँ बिल्कुल है. चिली इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स कॉपर डिपॉजिट्स. इंडोनेशिया निकल के लिए जाना जाता है क्या? यस, वन ऑफ द लार्जेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर and even the producer of nickel as well. तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है. all the 3 are correct answer. सी आंसर है इसका. 10वां देखते हैं एक बार. so the 10th question, मोलोर्का. मोलोर्का इटली में आता है क्या? ठीक है. तो कोई अगर टेनिस बहुत रेगुलरली फॉलो करता है तो राफेल नदाल इज फ्रॉम मोलोर्का. तो ये काफी न्यूज में था बिकॉज द नदाल which is considered as one of the greatest player of tennis history has taken retirement last year itself. तो उसकी वजह से ये न्यूज में काफी बार आया भी था बिकॉज ऑफ हिज होम टाउन एंड ऑल. तो मोलोर्का इज इन स्पेन, इट्स नॉट इन इटली. दैट्स वन थिंग विच इज रॉन्ग. तो ये यहाँ पे गलत लिखा है. नॉर्मंडी, इज इट इन स्पेन? नो, नॉर्मंडी इज नॉट इन स्पेन. सार्डिनिया, इज इट इन फ्रांस? नो. कॉर्सिका और सार्डिनिया, आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा होगा तो इटालियन यूनिफिकेशन के दौरान कॉर्सिका और सार्डिनिया इन 2 छोटे छोटे आइलैंड्स का कंटेक्स्ट आता है. तो यूरोप के जो मेडिटेरियन सी है वहां पर ये 2 वोल्केनिक आइलैंड्स है. सो द कॉर्सिका इज विथ फ्रांस और सार्डिनिया इज विथ इटली. इसी वजह से ये भी यहाँ पे गलत है. सो ऑल आर रॉन्ग ओवर हियर. सो द डी, नन इज द आंसर. आगे बढ़े. India is one of the founding members of the International North-South Transport Corridor (INSTC), a multimodal transportation corridor which will connect. अब ये वाला जो आंसर है यहाँ पे, इसमें इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान.
देखो INSTC जिसने भी पढ़ा होगा, ये पढ़ने के बावजूद भी इसके अंदर चांसेस है कि आप थोड़ी गलती कर दो। द रीजन बीइंग, ये जो मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, सी मल्टी मॉडल का मतलब क्या है, लैंड वाटर रेलवे, तो तीनों का मिला के जो होगा, दोनों तीनों का मिला के एयर रूट एंड ऑल, तो उसे मल्टी मॉडल कहते हैं। सो इफ यू सी दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर पासेस फ्रॉम अ कैस्पियन सी, वो कैस्पियन सी से पास होता है, ठीक है। तो कहां से पास होता है, ये इंडिया से जाएगा, इट विल पास फ्रॉम ईरान, it will pass from this Azerbaijan, and then after that it will pass into Caspian Sea, और वहां से फिर वो सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ जाएगा, जो इसमें है, रशिया में। अब यहां पे देखने वाली बात ये कि वो कैस्पियन सी से पास हो रहा है, ना कि वो सेंट्रल एशिया से पास हो रहा है। एग्जैक्टली कैस्पियन सी क्या है, वो बॉर्डर बनाता है यूरोप और एशिया के बीच में। इज इट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया? नो, सेंट्रल एशिया बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट ऑफ कैस्पियन सी। इसी वजह से ए स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएगा, गलत। इंडिया टू सेंट्रल एशिया, तो सेंट्रल एशिया से तो पास ही नहीं हो रहा है। सो द आंसर ऑफ दिस वुड बी इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान। दैट्स द परफेक्ट आंसर ओवर हियर। सो डी आंसर होगा इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, of the two major ethanol producers in the world, Brazil and United States of America, the former produces more ethanol than the latter. Former मतलब किसकी बात कर रहे हैं वो, ब्राजील की। तो उनका मानना है कि ब्राजील ज्यादा प्रोड्यूस करता है इथेनॉल यूनाइटेड स्टेट्स के कंपैरिजन में, बट ऐसा नहीं है। दुनिया का 43% इथेनॉल जो है वो यूएस प्रोड्यूस करता है, और सेकेंड रैंक पे आता है ब्राजील, विच प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 27 to 28%, जो ऑलमोस्ट हाफ और 60% ऑफ व्हाट यूएस प्रोड्यूसेस। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा, फैक्चुअली ही ये स्टेटमेंट गलत है। Unlike in United States of America, where the corn is principal feedstock for ethanol production, कॉर्न है क्या वहां पे? हाँ, कॉर्न स्टार्च का यूज किया जाता है वहां पर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। Sugarcane is the principal feedstock for the ethanol production in Brazil. Absolutely correct. So second statement over here would be correct. तो आंसर क्या आएगा? Statement 1 is not correct, but the statement 2 is correct. As simple as that. तो 3 D इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। Artificial way of causing rainfall to reduce air pollution makes use of what? इसका आंसर अगेन इट्स सिंपल। होता क्या है आर्टिफिशियल रेन में कि भाई ऊपर जाएंगे, कोई कंपाउंड रिलीज करेंगे इनटू द क्लाउड्स, and over there whatever small cloud droplets are there, वो उनको आके चिपकने चाहिए। So उनके अंदर वो affinity towards water droplets, that should be the case with the compound। और ये किसके अंदर होता है? जिसके अंदर आयोडाइड होता है उसकी affinity होती है towards absorption of the water and clinging them, and this is there in silver iodide and potassium iodide। इस वजह से इसका आंसर है A is the answer। Next, with reference to India, consider the following pairs। National Automotive Board, है ना, ये कौन सा क्वेश्चन है? 37। सो 37 में लिखा हुआ है नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डज इट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? नो, ऑटोमोटिव बोर्ड आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये है इसका एक्चुअल पेयर। द कॉयर बोर्ड किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये इसमें आएगा। While National Center for Trade and Information, it will come under Ministry of Commerce and Industry। Again, ये भी एक काफी फैक्चुअल सा सवाल था, पता है तो पता है, बट है ना, इसका काफी हद तक आप एक अनुमान भी लगा सकते हो। कॉयर इंडस्ट्री जो है ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कॉयर इंडस्ट्री हेवी इंडस्ट्रीज में तो खैर आएगी ही नहीं। दिस इज अ वेरी लॉजिकल थिंग। इस वजह से 2 तो यहाँ पे 100% एलिमिनेट हो जाएगा। Anyone who have studied even on a small scale, थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उसको ये जरूर पता होगा कि कॉयर फैक्ट्री जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है, हेवी में तो आएगी नहीं कम से कम। तो इस वजह से यहां पर ये वाला हट जाएगा। तो यहां पे ऑल 3 या नन में से हटा, 1 और 3 में से आपको आंसर चूज करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, है ना, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। तो ये सारे एक्टिविटीज बताई हुई है यहाँ पे। How many of the above activities are governed by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board? तो देखो, एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और एक होता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, एक्ट 2006। ठीक है, तो किसके अंदर कौन सा आता है? तो यहां पे ये देखा गया कि प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। तो
प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक की जो पूरी प्रोसेस है, जो एक्टिविटी है, वो इसके अंदर आती है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के अंतर्गत। तो इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड ओवर हियर वुड बी ट्रू, क्योंकि यही पूछा हुआ है, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। और ये जो है थर्ड एंड फोर्थ, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आता है, एंड दैट्स व्हाई आंसर ओवर हियर शुड बी ओनली 2। चलो, consider the following statements. India has joined the mineral security partnership as a member. तो ये सही है क्या? हाँ जी, हमारा ये 12th या 13th हमने एज अ मेंबर ज्वाइन किया इसको। 56 क्वेश्चन, राइट? So we have joined as a 14th member, actually not 13th, it's 14th member we have joined over here, mineral security partnership. India is a resource rich country in all 30 critical minerals that has been identified. So अब ये सवाल जो है, so when we all faculties were making our answers, we were finding out various answers, we were discussing among ourselves. तो ये चीज हमने डिस्कस करी थी कि this is such a simple answer actually for this. The reason being, अगर इंडिया के पास सारे क्रिटिकल मिनरल्स अगर होते तो हमें हर छोटी चीज पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेयर अर्थ एलिमेंट इज वन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल दैट वी ऑल नो, राइट? अगर भारत के पास ये अगर एक अबंडेंस में अगर होता, तो ऐसा क्यों होता कि भाई स्मार्टफोन्स भी चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते? या फिर ऐसा क्यों है कि सोलर पैनल में लगने वाले जो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं, दोस फोटोवोल्टाइक सेल्स आल्सो वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो उसमें चाहिए होता है, दैट्स नॉट देयर विद इंडिया इन गुड अमाउंट, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू इंपोर्ट इट ऑल द टाइम, है ना? तो इंडिया इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स। लिथियम हो गया, या फिर कोबाल्ट हो गया, या फिर अदरवाइज रेयर अर्थ एलिमेंट, दीज आर सम ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स इन विच इंडिया इज डिफिशिएंट, है ना? सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट ओवर हियर वुड बी रॉन्ग। अब आप देखो, जैसे ही आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, तो ये गया, देन दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, एंड यू हैव योर आंसर। सी इज द आंसर, है ना? सो 1 and 3 वुड बी राइट। 56 हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 61, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन and Macedonia. Now, how many of the above members are part of North Atlantic Treaty? NATO के कौन कौन से मेंबर है इसमें? तो इसमें ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है और सर्बिया मेंबर नहीं है, बाकी सारे उसके मेंबर है। तो आंसर वुड बी इसका 4, क्योंकि 1 2 3 4, सो 4 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ नाटो। सिंपल है, बिकॉज Ukraine Russia war is going on, Ukraine wanted to become part of NATO, this question has been asked. तो because it's very obvious कि इतना इशू चल रहा है, तो उस इशू के आसपास का आपको सारा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए था, and this was one of that information which is a very basic one. It's not because of the Ukraine Russia war you should have known this, इसलिए भी क्योंकि ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। नाटो के मेंबर्स कौन से हैं, या फिर कई सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, एशियान हो गया, नाटो हो गया, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के आपको मेंबर्स तो पता होने चाहिए, नहीं? चलो आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे एंड वेनेजुएला। इनमें से एंडीज माउंटेन्स में से कौन कौन से पास होता है? यहाँ पे एंडीज माउंटेन में से पास होने वाला, तो क्या ये बोलिविया से पास होता है क्या? हाँ, बोलिविया में ना एक लेक है टिटिकाका। टिटिकाका लेक इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अब हाईएस्ट लेक तो तब होगा ना यार, किसी माउंटेन के ऊपर है वो तो। एंड टिटिकाका लेक इज समथिंग व्हिच यू स्टडी इन योर मैपिंग, सो यू शुड हैव नोन दिस। इसीलिए बोलिविया तो होगा ही होगा, नहीं? तो बोलिविया तो यहाँ पे है। इसके बाद डू वी हैव ब्राजील इन द पिक्चर ओवर हियर? ब्राजील तो काफी ईस्ट में आ गया, तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो ब्राजील इसमें से हट गया। Along with that, do we have Colombia over here? Yes, Colombia is also part of Andes, क्योंकि कोलंबिया थोड़ा सा क्या पूरा वेस्ट में ही है, नॉर्थ वेस्ट में कोलंबिया ही तो है। इक्वेडोर, यस, इक्वेडोर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। पैराग्वे नहीं, अरे वो सारे ग्रासलैंड्स आ जाते हैं ना पैराग्वे, उरुग्वे के पास। अगर हमने मैपिंग पढ़ी हुई है, अगर आप अगर 7th 8th की 6th 7th की अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो उसमें लिखा हुआ है, साउथ अमेरिका के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हुए ये बताया हुआ है दैट इफ यू लुक एट द साउथ अमेरिकन मैप, फिजिकल मैप ऑफ इट, तो उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राजील, तो अर्जेंटीना एंड ब्राजील की बॉर्डर एक दूसरे से टच करती है, एंड उरुग्वे एंड पैराग्वे आर बेसिकली ऑन द 2 साइड ऑफ इट। और इन चारों का जो एक कॉन्ग्लोमरेशन आता है एक जगह पे, वहां पर यू वुड फाइंड
टेम्परेट ग्रासलैंड विच इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नहीं? सो अगर वहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड है, फ्लैटलैंड है, तो फ्लैटलैंड के अंदर माउंटेन कहां से आएगा? इसीलिए पैराग्वे यहां से एक लॉजिकल रीजनिंग बता रहा हूं आपको कि किस प्रकार से एलिमिनेट किया जा सकता है, नहीं? सो पैराग्वे हमने हटा दिया यहां पे, वेनेजुएला आएगा क्या? हाँ जी, वेनेजुएला आएगा। वेनेजुएला क्योंकि कोलंबिया के बिल्कुल बगल में वेनेजुएला है, नहीं? इसी वजह से these are the countries, 4 countries are there, only 4 should be the answer. ये यहां पर एंडीज माउंटेन का बताया भी है सारा इस पिक्चर में। अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, लेक तंगनाइका, लेक टोनले सैप, पेटोस लगून, थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास? इक्वेटर से कितने पास होता है ये? अगर आप देखो ठीक से तो इक्वेटर से कोई ये इसमें से कोई लेक इक्वेटर से पास नहीं होता। जैसे अगर मैं तंगनाइका की बात करो, देखो ये सारे यहां पे निकाला हुआ है, अगर आप लेक तंगनाइका की बात करो तो ये 5 डिग्री का लैटिट्यूड आता है यहाँ पे, एंड दिस इज तंगनाइका ओवर हियर। अगर आप 5 डिग्री का और नीचे 10 डिग्री है, इसका मतलब 5 के ऊपर ही होगा ये, सो कहीं भी नहीं है। दूसरा, अब ये तो यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा है, इसलिए अगर आपने अच्छे से ये एटलस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि लेक विक्टोरिया इज द प्लेस वेयर द नाइल रिवर ओरिजिनेट्स, नहीं? नाइल रिवर अगर लेक विक्टोरिया में ओरिजिनेट होती है तो ये सवाल पूछना चाहिए कि किसी लेक के अंदर इतनी बड़ी नदी ओरिजिनेट कहां से हो गई, इतना सारा पानी का सोर्स उसको कहां से दिया गया? वो इसलिए क्योंकि लेक विक्टोरिया जो है वो बिल्कुल इक्वेटर पे लाया करता है, और इक्वेटर पे चूंकि हर दिन बारिश होती है, इस वजह से लेक विक्टोरिया का पानी हमेशा भर जाता है, एंड दैट वाटर बेसिकली प्रोवाइड सोर्स फॉर द नाइल रिवर। इसीलिए नील नदी को जो है पानी का स्रोत मिल जाता है। अब लेक तंगनाइका की पोजीशन जो है वो विक्टोरिया के साथ कैसी है? क्योंकि जब ये लेक्स पढ़ाए जाते हैं, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं मैपिंग के दौरान, तो लेक विक्टोरिया, लेक तंगनाइका, लेक ताना, लेक तुर्काना, ऐसे कई सारी अलग अलग लेक्स पढ़ाई जाती है यहाँ पे। तो विक्टोरिया ऊपर है और उसके नीचे एक लंबी सी लेक पढ़ाई जाती है जो लेक तंगनाइका। लेक तंगनाइका इज द लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, है ना? लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है वो, और विक्टोरिया के नीचे है। क्योंकि विक्टोरिया खुद इक्वेटर पे आती है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि लेक तंगनाइका जो थोड़ा नीचे है वो तो देखो इक्वेटर पे नहीं आएगा। इसी वजह से आपको एक लॉजिक के तौर पे समझ जाना चाहिए था कि हाँ, लेक तंगनाइका शुड नॉट बी देयर। कंबोडिया में आता है टोनले सैप, तो कंबोडिया तो भाई आप देखो जकार्ता के पास इक्वेटर पास होता है ना? सुमात्रा जावा जो है, जो इंडोनेशिया के आइलैंड से, वहां से इक्वेटर पास होता है, और कहा कंबोडिया बिल्कुल ऊपर रह गया वो, नहीं? इसी वजह से दिस टोनले सैप वुड आल्सो बी रिमूव्ड। और उसके बाद अगर हम उसकी बात करें, जो हमने तीसरा दिया हुआ यहां पे पेटोस लगून, ये जो पेटोस लगून है ये तो ब्राजील में है, ब्राजील के साउथ ईस्टर्न साइड पे, और इक्वेटर जो है वो साउथ अमेरिका के बिल्कुल नॉर्थ में है, एकदम एकदम नॉर्थ चोटी के ऊपर है। तो इस वजह से एकदम उनका दूर दूर तक का कोई रिलेशन नहीं है इक्वेटर के साथ। तो दैट्स व्हाई ऑल दीज 3 वुड बी रिमूव्ड। डी विल बी द आंसर, नन आंसर है इसका। इसके बाद लेट्स सी द नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022-23। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये। मोर देन 30 वैरायटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। भारत में 40 से ज्यादा टर्मरिक की वैरायटीज ग्रो की जाती है, तो मोर देन 30 तो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु आर द मेजर प्रोड्यूसर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिस इज, तो डी आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। Which of the following are the evidences of the phenomena of the continental drift? अब देखो, ये पढ़ते ही मैं जानता हूं कि कई सारे बच्चे जो है वो बिल्कुल उछल गए होंगे अपनी सीट से कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो बड़ा सिंपल सवाल पूछ लिया, ये तो मैं सही करूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी बहुत ही धोखेदायक होता है, बहुत ही खराब हो जाता है। तो इस वजह से यहां पर नाउ दिस क्वेश्चन वाज लिटिल बिट ट्रिकी। अगर आप ठीक से देखो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, समझो कैसे। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विथ दोस फ्रॉम द वेस्टर्न अफ्रीका। बिल्कुल सही, कोई गलत नहीं है इसमें। जिक्सॉ फिट तो आपको क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो जिक्सॉ फिट में तो यही बताया हुआ है कि भाई ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राजील एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका मैचेस टुगेदर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ जिक्सॉ फिट। तो ऑब्वियसली अगर ट्रिकरी करानी भी है अगर यूपीएससी को, तो पहले आसान कुछ तो स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो ये तो सही है। The gold deposits of Ghana are derived from Brazil plateau when the two continents lay side by side. Similarly, एक placer deposits करके एक लिखा हुआ है,
आपके एनसीईआरटी में भी ये प्लेसर डिपॉजिट है, जिसमें घाना और ब्राजील का ईस्टर्न पार्ट जो है, यहां पर दोनों जगह पर गोल्ड डिपॉजिट मिले हुए और उन दोनों गोल्ड डिपॉजिट का जो एज है वो बिल्कुल एक जैसा बताया हुआ है. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट ओवर हियर वुड आल्सो बी करेक्ट. अब तीसरा स्टेटमेंट आप देखो, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. यहां पर आप ठीक से देखो, अगर मैं सारे लैंड मासेस निकालू, जब पैंजिया हमारी पृथ्वी पे था और पैंजिया दो पार्ट में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, राइट. गोंडवाना लैंड के हिस्से कौन कौन से लैंड मासेस थे? तो आज का जो अफ्रीका है, सो अफ्रीका इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. क्या? एब्सोल्युटली, वो तो बीच में ही था. Then we have South America over here. Yes, Madagascar था यहाँ पे. India was over here. Then after that we have Australia and Antarctica. इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं इसको गोंडवाना लैंड को. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस. मतलब इंडिया छोड़ के आपको गोंडवाना लैंड के सारे काउंटर पार्ट्स बताने हैं, बराबर. तो इंडिया छोड़ के बताने, तो बताओ फिर. लेट्स रिमूव इंडिया फ्रॉम द पिक्चर. आप जब इंडिया हटा दोगे तो 1 2 3 4 और 5 ही बच गए. तो इसीलिए यहां पर 5 आएगा. सो इंडिया पकड़ के 6 बट अदरवाइज 5. स्टेटमेंट जिस प्रकार से पूछा हुआ है वो स्टेटमेंट इंडिया को एक्सक्लूड करके पूछ रहा है आपको कि कितने कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करते थे. सो इट्स 5 नॉट 6. अब पढ़ते वक्त किसी ने अगर इसको ओवरलुक कर दिया होगा तो इसको सही मार्क कर दिया होगा, बट अदरवाइज दिस इज रॉन्ग. द आंसर इज ओनली 1 and 2. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओवर हियर. स्टेटमेंट 1, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर is more in subtropical and the temperate areas than in the equatorial and the polar region. सही है? हाँ बिल्कुल सही है. ऐसा क्यों सही है? ये इक्वेटोरियल रीजन में बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, इस वजह से हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए पूरी धूल मिट्टी नीचे बैठ जाती है. सो देयर इज नॉट मच डस्ट पार्टिकल एज सच. और पोलर रीजन की अगर बात करें तो पोलर रीजन के अंदर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि व्हाटएवर इज देयर एवरीथिंग विल सेटल डाउन. तो इसी वजह से यहां इन दो जगहों पर इक्वेटर तथा पोलर रीजन में धूल मिट्टी की चांसेस होना बहुत ही कम है. ड्राई मिट्टी अगर आप कंपैरेटिव तरीके से देखो, तुलनात्मक रूप से देखो, तो ड्राई मिट्टी जो है, सूखी मिट्टी आपको टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा मिलेगी. ट्रॉपिक्स में थोड़ी और भी ज्यादा और टेम्परेट में थोड़ी ट्रॉपिक से कम, बट दोनों में आपको ड्राई मिट्टी, ड्राई एयर मिलती है. इस वजह से यहां पे धूल मिट्टी उड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ऑन टॉप ऑफ इट ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है तथा टेम्परेट साइक्लोन, तो साइक्लोनिक कंडीशंस टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में देखी जाती है, जिस वजह से धूल मिट्टी उड़ने के चांसेस भी वहीं पे ज्यादा होते हैं. इसी वजह से टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन यहां पे आएगा. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. अब स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, सब ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड. डू दे हैव लेस ड्राई विंड? नो, दे हैव मोर ड्राई विंड्स. सो स्टेटमेंट 2 ओवर हियर वुड बी रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. So statement 1 is correct, but statement 2 is not correct. ठीक है, आगे बढ़ते. Consider the following statement. In January, in the northern hemisphere, the isotherms bend equatorward while crossing the landmass and poleward while crossing the ocean. अब ये सवाल I am pretty sure that most of you have got confused in this one. चलो इसको फटाफट एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से. बहुत ही सिंपल है इसका तरीका. कभी भी एक बॉक्स निकालो, इस बॉक्स को 2 हिस्सों में बांट लो. एक को मैंने नाम दिया वाटर बॉडी, लेट्स से मैं इसको ओशन नाम देता हूं. दिस इज द ओशन एंड दिस इज लैंड मास. करेक्ट. ये फर्ज करो कि विंटर सीजन चल रहा है. दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. 90 डिग्री नॉर्थ ले लो इसको, दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर. करेक्ट. अब आइसोथर्म क्या होता है? द लाइन विच कनेक्ट्स पॉइंट्स हैविंग इक्वल टेम्परेचर. हमें सबको पता है कि लैंड और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है उसमें अंतर होता है. Where the water has 1.5 times the specific heat of land. मतलब पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है. That means उसको ज्यादा हीट चाहिए अपना टेम्परेचर लैंड जितना ही बढ़ाने के लिए. That's what we call as specific heat. अब मैंने यहां पर एक आइसोथर्म निकाल दिया. फर्ज करो कि लैंड के ऊपर मैंने 20 डिग्री सेल्सियस वाला आइसोथर्म निकाला, बराबर. विंटर सीजन में अगर आप देखो तो पानी का टेम्परेचर लैंड की तुलना में ज्यादा होता है ना. क्यों? क्योंकि पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है और धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और लैंड फटाफट गर्म होती है, फटाफट ठंडी होती है. तो विंटर में लैंड ठंडी हो जाएगी फटाफट और पानी जो है वो गर्म रहेगा.
इसी वजह से इसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहां से अगर मैं एक डॉटेड लाइन निकाल दूं ऐसी, तो ये वाला आइसोथर्म जो है पानी के ऊपर, क्या ये 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वाला होगा कि कम वाला होगा? ऑब्वियसली ज्यादा वाला होगा। द रीजन बीइंग, एक ही लैटिट्यूड के अंदर पानी जो है वो रिलेटिवली गर्म होगा विंटर सीजन में लैंड की तुलना में। इसी वजह से इसका टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है भाई, बराबर। अब ओशन के ऊपर अगर मुझे 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए, कम की बात कर रहा हूं मैं, तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स पोल और टुवर्ड्स इक्वेटर। यू हैव टू मूव टुवर्ड्स पोल। इस वजह से 20 डिग्री सेल्सियस वाला आइसोथर्म जो है वो ओशन के ऊपर विंटर सीजन में मुझे थोड़ा पोल की तरफ मिलेगा। तो ये डायग्राम मैंने बना ली। अब देखते हैं इसका क्या पूछा हुआ है। इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बेंड इक्वेटरवर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द लैंडमास। मतलब लैंडमास की तरफ जाते वक्त ये हो रहा है क्या? इफ यू मूव टुवर्ड्स द लैंडमास यू हैव टू बेंड टुवर्ड्स इक्वेटर एंड देन यू मूव टुवर्ड्स लैंडमास ओवर हियर। तो ये सही है। एंड पोलवर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द ओशन, आप अगर ओशन की तरफ क्रॉस कर रहे हो तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स पोल एंड देन यू मूव टुवर्ड्स ओशन। इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली ट्रू। तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट ओवर हियर इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मासेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब बात ऐसी है कि मैंने जो आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया वो किस बेसिस पे दिया? लैंड और वाटर के स्पेसिफिक हीट पर, दैट द लैंड इज कोल्डर देन द वाटर इन द विंटर सीजन। हवा का कोई लेना देना है क्या इसमें? ओशन के ऊपर की हवा या लैंड के ऊपर की हवा? टेम्परेचर ऑफ द एयर इज नॉट इंपॉर्टेंट ओवर हियर। टेम्परेचर ऑफ द लैंड इटसेल्फ एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर इटसेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट। इसी वजह से सेकेंड स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई आंसर वुड बी बी, नॉट ए। तो इस वजह से आई एम श्योर दैट मेनी ऑफ यू मस्ट हैव मार्क्ड ए। तो आंसर इसका बी है, फॉर श्योर इसका आंसर बी ही होना चाहिए। आगे बढ़े। 68 in the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very porous rock, whereas clay is permeable rock or known as quite an impermeable or least permeable rock. Is this correct? Absolutely. देखो, what is porosity, what is permeability? Porosity is basically the holes in the rock. That's it. That's what we call as the spaces between the rock is called as porosity. What is permeability? The ability of a body to pass through. Like if the water passes through from a body, then it's a permeable body. तो अब chalk ले लो या clay ले लो, both of them are sedimentary rock क्या? Yes, both of them are sedimentary rock. अगर दोनों sedimentary rock है तो ये जाहिर सी बात है कि दोनों छोटे छोटे sediment से बने होंगे, अलग अलग sediment से ही बने होंगे। तो sediment से अगर बने हैं वो, तो उनके बीच में स्पेस तो होगी। अब वो स्पेस कम हो सकती है, स्पेस ज्यादा हो सकती है, बट स्पेस होगी क्या? हाँ बिल्कुल स्पेस होगी उनके बीच में, ठीक है। तो इसी वजह से क्या इनके अंदर पोरोसिटी है? हर एक सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पोरोसिटी होती है। इस वजह से चॉक हो या क्ले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे डू हैव पोरोसिटी। बट डू दे हैव परमेबिलिटी? किसी भी रॉक्स के अंदर अगर सिर्फ पोरोसिटी है, खड्डे अगर है, तो कोई जरूरी नहीं कि उसके अंदर परमेबिलिटी हमेशा हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो खड्डों की साइज, अगर स्पेस उनके बीच में अगर बहुत ही कम होगी तो पानी का पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस वजह से द सम ऑफ द रॉक्स कैन बिकम ऑलमोस्ट इम्परमिएबल, जो क्ले के साथ कंडीशन है, क्योंकि क्ले की मिट्टी बहुत पतली होती है। चाइना क्ले की मिट्टी देखी होगी ना आपने, सो इट्स वेरी फाइन। बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द वाटर टू पास थ्रू। पानी को उसमें से जाना डिफिकल्ट हो जाता है, ये याद रखना। पोरोसिटी है इसका मतलब कोई गारंटी नहीं कि परमेबिलिटी होगी। फॉर दैट मैटर परमेबिलिटी है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो पोरोसिटी ज्यादा होगी, है ना। तो दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है वहां पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे सही है क्या? हाँ सही है। चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन अब्सॉर्ब वाटर। चॉक पोरस है तो वाटर अब्सॉर्ब कर पा रहा है क्या? यस, इट कैन अब्सॉर्ब वाटर। स्टेटमेंट 3, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। क्ले नॉट एट ऑल पोरस, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अभी आपको बताया कोई भी सेडिमेंट्री रॉक थोड़ी या ज्यादा मात्रा में पोरोसिटी रखता ही रखता है, क्योंकि वो अलग अलग सेडिमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसी वजह से थर्ड स्टेटमेंट ओवर हियर वुड बी रॉन्ग। सो आंसर वुड बी सी। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। आगे बढ़ते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विदाउट द एटमॉस्फेयर
temperature would be well below freezing point everywhere on the earth's surface. Now this is the information which says that earth पे अगर कोई एटमॉस्फेयर ना होता तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता. दैट मींस -18 डिग्री सेल्सियस वुड हैव बीन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, राइट. तो इसका मतलब है क्या सब 0 डिग्री सेल्सियस है क्या? हाँ जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. हीट अब्सॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर. इसी को तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. हमारी पृथ्वी पे ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? यस. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? Many gases, but carbon dioxide and water vapor are the major ones. Atmosphere's gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping the radiation. Correct, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. The answer is C. 1, 2, 3. Consider the following statement about Rashtriya Gokul Mission. It's an important. Rashtriya Gokul Mission basically is the one in which we are going to promote our indigenous cows. We are going to increase the quality of the indigenous cows so that the small farmers who are holding them, who are having them, they'll get benefited more from their more milk production and all. तो क्या वो small farmers को या poor गरीब लोगों को फायदा करेगा? बिल्कुल करेगा. So राष्ट्रीय गोकुल मिशन is for that as well. Would it enhance the quality of our indigenous breeds? Absolutely. राष्ट्रीय गोकुल मिशन उसी के लिए है. It's important for upliftment of the rural poor as majority of the low producing indigenous animals are with small and marginal farmers. तो ये correct है. It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in the scientific and holistic manner. सही है ये. So answer is C, both 1 and 2. And the last question of geography is, consider the following statement. Statement 1 क्या है? Scientific studies suggest that the shift is taking place in the Earth's rotation and axis. एक मिलानकोविच साइकिल पढ़ाते हैं हम लोग क्लास में. तो मिलानकोविच साइकिल में ये सब एक्सिस, पृथ्वी के एक्सिस में भी बदलाव होते हैं, पृथ्वी के रोटेशन में, रिवोल्यूशन में भी बदलाव होते हैं. और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा होता है, जिसकी एक कालावधि होती है 1 लाख साल में, 43,000 ईयर्स में, 25,000 ईयर्स में इसके चेंजेस होते हैं, साइकिल्स आती है. तो ये सही है क्या? साइंटिफिकली प्रूवन है, सही है. सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बम्बार्ड द अर्थ्स आउटर एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. सूरज से आने वाली जो कोरोनल मास इजेक्शन है, मतलब बहुत सारा जो प्लाज्मा सूरज से आता है, सन से आता है, वो पृथ्वी पर टकराता है. ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. बम्बार्ड द अर्थ्स आउटर एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी. पहले भी टकराता था, आज भी टकराता है. पहले हमारी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, इस वजह से जो पहले का एटमॉस्फेयर था वो हटा दिया गया. आज हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इस वजह से वो आज का जो एटमॉस्फेयर है उसको हटा नहीं पाता, इसीलिए हमारा एटमॉस्फेयर अभी भी इंटैक्ट है. तो दिस इज आल्सो करेक्ट. एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर. अब जब पोल की आइस जब मेल्ट होगी तो ओशन की लेवल बढ़ेगी. ओशंस की लेवल बढ़ेगी तो वजन बढ़ेगा पृथ्वी के ऊपर. सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट जो है वो पृथ्वी के रोटेशन में तथा पृथ्वी के एक्सिस में कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा जरूर. इस वजह से ये सही है. तो एक्चुअल में इन स्टेटमेंट 1 सही है क्या? हाँ. क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है? नहीं कर पा रहा है. कोरोनल मास इजेक्शन जो है, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट अर्थ्स ओवरऑल रोटेशन एंड द एक्सिस, डजंट मेक एनी सेंस. बट क्या पृथ्वी पे आइस मेल्ट होने की वजह से उसकी डेंसिटी में फर्क पड़ेगा क्या अलग अलग जगहों पे? हाँ पड़ेगा. इस वजह से क्या पृथ्वी के रोटेशन और एक्सिस पे फर्क पड़ेगा उसका? हाँ पड़ेगा. इसीलिए यहां पर आंसर शुड बी बी. बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्कस द एंटायर टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी ओवर हियर. सवाल अगर आपने देखे होंगे तो इसमें से करीब करीब 25 to 30% क्वेश्चंस आर ट्रिकी, जो लग तो रहते आसान, बट आप जब सॉल्व करने जाओगे तो आपको लगेगा, आप जब सॉल्व करके आए होंगे तो आपको लगा होगा कि यार शायद गलत मार्क कर दिया. नहीं किया होगा तो वेल एंड गुड, all the best to you guys. But there is a chance that majority of the students might have made mistake in this. My verdict, if you ask how was the paper, overall मैंने पेपर देखा. We all faculties have also discussed among ourselves that what is the nature of paper, how difficult it is. तो हमने ये देखा कि सवाल जो है वो लास्ट ईयर की तुलना में relatively easy, seemingly they are easy, but because of the trickiness there is a chance that if you have not read paper properly, you are bound to make a lot of mistakes.
तो कई सारे बच्चे आपको इस साल ये बोलते हुए मिलेंगे कि मुझे इसका आंसर आता तो था, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, इस वजह से मैंने गलत कर दिया। ये कई सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत होने वाली है। तो स्टूडेंट्स हु हैव रेड पेपर वेरी नाइसली, फॉर देम दिस पेपर इज इजी। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, हियर आई हैव फिनिश्ड विद द ज्योग्राफीज क्वेश्चंस। थैंक यू।